Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, some of the subscribers are asking, sir, when Bank of India Credit Officer notification will come? To understand this, we will discuss some aspect of Credit Officer and its requirement in banks. You are aware that bank means acceptance of deposit for the purpose of lending and investment. That means two most important tasks that is done by branches of the bank is, first is mobilizing deposit and second is providing credit to people so that they earn income and ultimately result into profit. So credit plays a very vital role as far as any organization is concerned. Most of the branches, they have an officer on credit seat. Similarly, they have credit sections in regional and circle offices and in head office also. This staff helps the sanctioning authority to appraise the proposal and put up for sanction. That means the people having knowledge about credit are always required in banking. Now, how these positions are filled by the banks? As credit is a regular work, these seats can be handled by probation officers. These can be handled by the officers promoted from clerical seats or by having credit officer directly from the market. So some banks, they are taking officers. Those are having good knowledge about balance sheet and financial aspects as credit officer in scale 1, scale 2, scale 3. Usually these are the people who are having knowledge in finance either through MBA degrees or they are chartered accountants. So the vacancies are related to the requirement. Some subscriber or candidates are worried, sir, Bank of India notification has not come. Sir, such and such bank notification has not come. There is no fixed date for notifications for specialized post, because the only calendar that is fixed is that is of IBPS. IBPS in the second week of January declares the calendar for the entire year, and that is applicable for RRB positions, IBPS positions of clerk and PO and SO. Besides that, banks are free to take people for various streams through direct recruitment also. So number of banks, they go for credit officer post, they go for postgraduate diploma courses, they go for IT officers directly, they may go for security officers directly, they may go for other streams also. So you need not worry whether this notification has come or not. You need not worry when it will come. Your role is to prepare on daily basis, because this is a common mistake committed by candidates. They wait for notification, and the moment notification comes, then they ask the question, sir, is it enough time to prepare in 2 months? Why you are waiting for a notification? So if you are looking banking as a career, you should always prepare for banking examinations, and throughout the year many notifications will come and you may be eligible for some of them. You can apply and get the bank job. So my advice to all the people who are asking me, sir, when Bank of India notification will come, nobody can predict that, because the notification is dependent on the requirement of the bank. If bank requires, they will issue a notification. If they don't require, they will not issue a notification. So it is not a guaranteed thing that every time notification will come. It is not guaranteed. In certain years, a particular bank may take, another year another bank may take. So, but the important thing is such requirements do exist in banking, so such notifications will come. Thank you very much. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कुछ सब्सक्राइबर बार बार पूछ रहे हैं, सर बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर नोटिफिकेशन नहीं आया, कब आ जाएगा?
तो सबसे पहले तो ये समझे क्रेडिट ऑफिसर है क्या। देखो, बैंक के अंदर दो बेसिक काम है, डिपॉजिट को मोबिलाइज करना और लोन देना। लोन मीन्स क्रेडिट। कोई भी ब्रांच होगी तो उसमें आप देखेंगे एक सीट लोन्स की होगी जहां पर एक ऑफिसर पोस्टेड होगा। ये ऑफिसर क्लर्क से प्रमोटेड ऑफिसर भी हो सकता है, प्रोबेशन ऑफिसर भी हो सकता है, और कुछ ब्रांचेज में ये क्रेडिट ऑफिसर हो सकता है जो कि डायरेक्टली बैंक ने क्रेडिट फंक्शन के लिए लिया। अब क्रेडिट के लिए जो जहाँ बड़ी ब्रांचेज होती हैं या रीजनल ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ ऐसे अफसरों की ज़रूरत होती है जिनको बैलेंस शीट की नॉलेज हो, जो बैलेंस शीट एनालिसिस कर सके, फाइनेंशियल वर्ड की नॉलेज हो। इसलिए कुछ बैंक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट सीनियर मैनेजर्स को डायरेक्ट भी मार्केट से लेते हैं। नॉर्मली इसमें जो लोग MBA होते हैं, जिनको फाइनेंस की नॉलेज होती है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो अब ये कब रिक्वायरमेंट किस बैंक की आएगी, कौन से बैंक की आएगी, ये कोई फिक्स नहीं है। जो नोटिफिकेशन फिक्स्ड है वो खाली IBPS के हैं। 2nd वीक ऑफ जनवरी में ये अपना कैलेंडर इशू कर देते हैं और उसके अंतर्गत RRB के कब एग्ज़ाम होंगे, IBPS PO क्लर्क के कब होंगे, SO के कब होंगे, ये वो बता देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जहाँ तक दूसरी वैकेंसीज का सवाल है, क्रेडिट ऑफिसर है, IT ऑफिसर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज इन बैंक्स है, इसमें बैंकों को फ्रीडम है, जब भी वो चाहें इसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, जैसे कि स्टेट बैंक का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कब PO का आएगा, कब क्लर्क का आएगा, हर साल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनको फ्रीडम है कि उनका अपना अलग बोर्ड है स्टेट बैंक का। IBPS से उनका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनके पास तीनों रूट ओपन है। पहला रूट है IBPS के थ्रू जाएं, दूसरा रूट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू जाएं, और तीसरा है वो डायरेक्ट भी अपने नोटिफिकेशन निकाल के रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कई बैंक कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करते हैं। जो वैकेंसीज हमें नज़र नहीं आती, कई बार लोग कहते हैं सर आपने कहा था इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी तो आई नहीं, क्योंकि जो टोटल रिक्रूटमेंट है जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो इस बात पे करते हैं कितने लोग रिटायर होंगे इस साल और कितनी ग्रोथ वैकेंसीज इमर्ज होंगी। तो यदि बैंकिंग इंडस्ट्री में 80 से 90 हज़ार लोग रिटायर होंगे 2019 के अंदर, दिस इज एस्टिमेशन। इसके अलावा कुछ अनटाइमली डेथ भी हो सकती हैं, कुछ लोग रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज यदि हम रिप्लेसमेंट से भी देखें तो वो बनती है लगभग 1 लाख के करीब। अब ये बैंक मैनेजमेंट के ऊपर है कि 80% की सीटें भरनी है, 90% भरनी है, 100% भरनी है, 110% भरनी है। ये तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। खासकर जिन सालों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेन में होता है तो मैनेजमेंट क्या करती है, स्ट्रेच करती है कि चलो यार 2 महीने की तनख्वाह ना देनी पड़े, 2 महीने बाद रिक्रूटमेंट कर लेंगे, एग्जिस्टिंग स्टाफ से ही काम चलाते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो नेचुरली स्टाफ ओवरबर्डन हो जाता है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पास हो गए, अब हमें कुछ लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं बैंकिंग के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, उन लोगों को बैंकिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं जो ये फीडबैक दे रहे होते हैं। ये फेजेस होते हैं, किसी फेज़ में बैंक एम्प्लॉइज़ पे बर्डन ज़्यादा आ सकता है, कोई फेजेस ऐसे हो सकते हैं जब वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। ये किस्मत की बात है कि पिछले 4-5 साल में बैंक एम्प्लॉइज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि रिक्रूटमेंट स्लो कर दी सभी बैंकों ने। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है कंट्री की, सब लोग जानते हैं। हर सेक्टर में डी ग्रोथ है या बड़ी लो ग्रोथ है, तो उसका डायरेक्ट असर बैंकिंग पे आ रहा है और बैंकों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेन में आ गई थी। अब जैसे जैसे इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी, जिसकी पूरी संभावना है 2019 के बाद ये बाउंस बैक करेगी, तो यदि ये बाउंस बैक करती है तो सबसे पहला बेनिफिशियरी बैंक ही होंगे। और जब बैंकों के पास अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी तो वो नेचुरली जितनी उनकी सीटें खाली हैं सारी भरेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसी आधार पे मैंने बार बार आपको कहा है कि बम्पर वैकेंसीज इस साल आएंगी, और वो सामने भी आई। स्टेट बैंक क्लर्क के लिए हर आदमी कह रहा था वैकेंसी नहीं आएंगी, और मैं आपको कह रहा था आएंगी। अब ये जो 8,600 वैकेंसीज आ गई, ये एडिशनल नहीं है। पहले 2 साल में अगर 8,000 आई थी और एक ही साल में 8,600 आ गई तो क्या बम्पर नहीं है? इसी तरह यदि हम देखेंगे IBPS 2018 के सिलेक्शन में 10,000 एडिशनल लोगों को बैंक ले गए नोटिफाइड वैकेंसीज से,
तो क्या वो 10,000 एडिशनल नहीं है? तो अगर वो 10,000 एडिशनल हैं और ये 8,600 भी एडिशनल ही मानो, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो 2019 में नोटिफिकेशन आना ही नहीं चाहिए था क्लर्क का। जो लोग बातें कर रहे थे कि सर आप कैसे बता रहे हो 19 में आ जाएगा, 2020 में ही आएगा, 16 में आया था, 18 में आया था, अब तो 2020 में ही आएगा, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद बन रहे थे। ऐसी अक्ल नोटिफिकेशंस में नहीं चलती है। नोटिफिकेशन इस बात पे डिपेंडेंट है बैंक को ज़रूरत कब है। कोई ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स नहीं है। एक गलत फहमी से आप बाहर निकल जाओ कि कोई भी संस्था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर नहीं है। वास्तव में हर संस्था तब रिक्रूटमेंट करती है जब उसको लोगों की ज़रूरत है, उसको अपना बिजनेस चलाना है। बिजनेस चलाने के लिए स्टाफ चाहिए। तो यदि लोग रिटायर हो रहे हैं या रिज़ाइन कर रहे हैं या उनका ग्रोथ मॉडल वापस पोजीशन में आ रहा है तो रिक्रूटमेंट होगी। और जैसे ही ग्रोथ स्लो हो जाएगी रिक्रूटमेंट गिर जाएगी। अब आप देखिए कि अगर हम देखें 2000 जब से IBPS बना है उसकी शुरू की सिलेक्शंस में आप ट्रेंड देखिए, क्या ट्रेंड है? राइजिंग ट्रेंड है। हर साल वैकेंसी बढ़ती चली जा रही थी। 2014 के बाद अचानक वैकेंसीज गिरनी शुरू हो गई। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की आप देखिए, 2004 से 2014 तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कंट्री के अंदर। 2014 के बाद वो गिरनी शुरू हो गई। नेचुरली बैंकों का प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया, NPA बिल्डअप शुरू हो गया, वैकेंसीज भी कम हो गई। अगर 19 के बाद दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाती है तो क्या होगा? वैकेंसीज भी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी रखिए, इन बातों में मत आइए पास्ट ट्रेंड क्या है, अल्टरनेट ईयर आता है, इस डेट को नोटिफिकेशन आता है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब भी बैंक को ज़रूरत होगी बैंक रिक्रूटमेंट करेगी। और ये मान के चलो 80 से 90 हज़ार रिटायरमेंट है हर साल, एटलीस्ट 3 से 4 साल तक। उसकी रिप्लेसमेंट होनी ही होनी है। अगर ग्रोथ आ जाती है वो एड ऑफ वैकेंसीज होंगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।